We'll have discussion on the continued portion of nervous system, and लास्ट क्लास में जो है हमने नर्वस सिस्टम का जो कुछ बेसिक्स है वो सब हम देखे थे. And in the basics we have covered different types of nervous system, different divisions, and what is sensory, what is motor, then what is CNS, what is PNS. तो ये सब हमने कवर किया था. So today we will going to discuss about one more important aspect of nervous system, rather very important part of nervous system, that is called as ascending tracts. And we know that what you mean by tracts. Tracts are nothing but the white matter. Okay, so they are nothing but the axon of the particular nerve which are collected together. It forms the different tracts. And these tracts are two types basically. One is ascending tract, another one is descending tract. Descending tract means it is coming from the brain or center into the periphery. Ascending means it is taking the sensation from the periphery to the center. So ascending tracts means, in other words to say, it is nothing but sensory nerves. ठीक है, जो sensation जो है बॉडी का पेरिफेरी से जो है सेंटर को चला जाता है. ठीक है, तो उसको कैसे कैरी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन को जो सेंटर को जिस तरीके से कैरी होता है. सो ये सब हम देखेंगे इन द अंडर द हेडिंग्स ऑफ ascending tracts. Okay, now this is a basic again. There are many tracts in the central nervous system, as we know. These tracts are formed by the axons, again a repetition, and which forms the white matter of the brain, while the gray matter of the is the body of the neuron. This is what we have seen in the last class, which is present within the brain. I have given the example of rat and its tail also. These tracts may be running upward and these tracts may be running downwards. Those which are coming down are called as descending tracts. We are also called it is also called as motor fibers. Okay, so they take the information from the center to periphery, motor response. While which are going up, that means taking the sensation from the periphery to the center, they are called as ascending tracts. And there are similar such tracts which are running within the brain. बहुत सारे ट्रैक्स विद इन द ब्रेन भी है, कमीशर्स है, एसोसिएट फाइबर्स है, आर्कुएट फाइबर्स है. ठीक है, सो मेनी फाइबर्स आर देयर. ओके, कमीशर्स है. सो दैट ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. नाउ function of the central nervous system is basically it should receive all the sensory input from the periphery. This is very important. अगर central nervous system को काम करना है कि सबसे पहले तो sensation को उसको grasp करना चाहिए, isn't it? So different types of sensations are coming from the body, different types of sensations are taking place in the environment, and that has been perceived by the body. ठीक है, so बहुत सारे sensation चल रहा है. So body has to perceive the sensation, then it has to give it to the center. Okay, then only the center can give some response for that. है ना, कि अगर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो मेरा सेंट्रल नर्व सिस्टम का जो मोटर कॉर्टेक्स है देखने के लिए कुछ जो रेस्पॉन्स चाहिए उसको क्रिएट ही नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट एट ऑल हियरिंग somebody is calling my name but I am not at all hearing it, that means your sensation of auditory sensation is not there, it is not perceived, then it is not given to the center. Then how can I answer back, what is your name, somebody is asking, but I am not at all listening it all. मेरा सेंसेशन ही नहीं है ना, ऑडिटरी सेंसेशन ही नहीं है, तो उसके लिए आंसर देने का क्वेश्चन ही नहीं है, isn't it? Therefore, for every action the sensation should be sensation is very important. Sensation is very important. Therefore, we'll explain the vata. They say va gati gandanayo. ठीक है, va gati gandanayo. Vata constitute two important things. One is gati, another is gandana. Gati means motor response. Gandana means perception, sensory perception. Gandana means perceptions. Okay, so now therefore the function of the central nervous system is basically it should receive all the sensory input rather from the periphery into the brain, which is processed later and it leads to motor responses as for the sensation. All the sensations are carried to a cortex. The cortex which receives all the sensation is called a sensory cortex. Once the sensory cortex receives all this sensation, then it will be given to the motor cortex. Motor cortex gives the motor response. Okay, so now we come to the basics.
when we touch something, the stimulus which stimulates certain receptors, suppose we have got different types of sensations: touch sensation, pressure sensation, vibration, etc. Okay, so suppose you just assume that you are touching something, so the touching itself is the stimulus, and some of the receptors which are present in the skin for the touch perception, so they get stimulated. Okay, so they are stimulated, and then energy will be converted into action potential. As soon as you touch, some of the receptors which are present in the skin related to touch sensation, so they are stimulated, and there is production of some energy, and that energy is because of some chemical reactions. Okay, now that energy will be converted into action potential. Okay, and later it will be converted into electrochemical stimulus, and that energy will be carried to the central nervous system through the ascending tracts. So this is how the sensation starts. जब भी अब कोई भी sensation जब आपको आता है, for example you take the example of touching, जब तुमने टच किया तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, टच रिसेप्टर्स है, वो स्टिमुलेट हो गए. वो स्टिमुलेट होते ही जो है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलस हो गया. दैट मीन्स एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. एनर्जी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के बाद वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. नाउ लेटर दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल आपको पता है जिस तरीके से चलता है एक्शन पोटेंशियल. सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल. नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल इज कैरीड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द ascending tracts. ठीक है, different ascending tracts will carry on this particular action potential into the sensory cortex. Now sensory cortex will assess it and then give a message to the motor cortex. Motor cortex will look into it, and after all this analysis and all, it gives a reaction in the form of response, motor response. This is exactly what is happening. Therefore what happens in case of autism, जो autism का बच्चे है, so वहाँ पे usually क्या होती है, sensory block है. सेंसरी ब्लॉक है. सेंसेशन जिस तरीके से ऊपर तक कैरी होना है वो कैरी नहीं हो पाता है, इसलिए ऑटिज्म के बच्चे अपने आप कुछ करते रहते हैं. सो दे आर डूइंग समथिंग देमसेल्फ, सो दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परसीव द सेंसेशंस. ठीक है, या तो सेंसेशन को परसीव करने में प्रॉब्लम है, या तो उन बच्चों में क्या होता है कि सेंसरी कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है. सेंसरी कॉर्टेक्स जो है उसको ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं करता है. So therefore the child is not giving, autism child is not giving any reciprocal response. जब आप बात करते हो तो वो आपका तरफ देखता नहीं, क्योंकि उसको सुना ही नहीं पड़ रहा है. Okay, so this is the problem. So therefore sensation is very important. पहले sensation देना बहुत important है, तभी जाके कुछ ना कुछ मोटर रेस्पॉन्स उसका रेसिप्रोकल में आ जाएगा. नहीं तो मोटर रेस्पॉन्स तो वैसे ही आ जाएगा, बट इट इज नॉट कनेक्टेड. ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑटिज्म. ऑटिज्म का बच्चा अपने आप खेलता रहता है, ठीक है, अपने आप कुछ बोलता रहता है या खेलता रहता है या जो भी करता है, बट वो दूसरों लोग कैसे खेलते हैं उस हिसाब से नहीं खेलता है. द रीजन इज ही इज नॉट गिविंग हिज रेस्पॉन्सेस, मोटर रेस्पॉन्सेस अकॉर्डिंग टू द सेंसरी स्टिमुलेशन. क्योंकि सेंसरी स्टिमुलेशन के हिसाब से एक मोटर रेस्पॉन्स देना अलग है और अपने आप एक मोटर रेस्पॉन्स देना अलग है. गॉट द पॉइंट. सो नोबडी हैज आस्क्ड माय नेम. ठीक है, कोई बोले ही नहीं, कोई मेरा नाम पूछे नहीं है, बट ऑटिज्म का चाइल्ड क्या करता है, वो अपने आप कुछ बोलता रहता है, नॉट द नेम और सम अदर थिंग्स. ठीक है, इसका मतलब मोटर रेस्पॉन्स उसका बॉडी में भी आता है. ठीक है, अपने आप आता है. ठीक है, सो इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेंसरी स्टिमुलस. मैंने पूछा नाम, उसके लिए उसका मोटर रेस्पॉन्स आ गया इन द फॉर्म ऑफ टॉकिंग. सो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू. ओके, मैंने पूछा ही नहीं है, अपने आप कुछ कर रहा है वो. सो दैट इज ए मोटर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस विद विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेंसरी स्टिमुलस. यू गॉट द पॉइंट. सो दैट्स द रीजन. सो देयरफॉर दिस सेंसरी ट्रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ coming to the other aspects of the ascending tracts. Now the apparatus which converts the stimulus energy into electrochemical energy is called as receptor. जब आपने टच किया, टच करने के बाद वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रो और केमिकल एनर्जी बन गया, और उसको जो है एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है ना, वो जो apparatus है, इसको हम रिसेप्टर बोलते हैं. Such receptors are present throughout the skin for different sensations. Okay, so you can call these receptors as biological transducers. ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स है, स्किन में प्रेशर के लिए रिसेप्टर्स है, पैसिनियन रिसेप्टर्स है, पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, टच के लिए कुछ रिसेप्टर्स है. इस तरीके से अलग अलग सेंसेशन के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स है.
इस रिसेप्टर्स को आप बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज एनी apparatus which convert one type of energy into another type of energy. ठीक है, यहाँ पे electrochemical energies get converted into the action potential energy. ठीक है, action potential में वो convert करता है. So इसको बोलते हैं transducers. Okay, so light is visible from the electromagnetic waves. Light is visible from the electromagnetic waves which are carried through the light receptors. ठीक है, rods and cones, which are responsible for the vision. Similar is the smell. Smell is also, it is taken from the receptors which are present in the olfactory mucosa of the nose. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ receptors है, तो वहाँ पे जैसा आपका स्मेल आ गया, वो स्मेल आके वहाँ का म्यूकोसा के साथ एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, and that will be carried. Whatever smell which is coming, that will go to the olfactory mucosa and it reacts with the mucosa, and as a result there is formation of some energy. ठीक है, कोई भी स्मेल अंदर आपको परसेप्शन होने के लिए वो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में डिजॉल्व होना चाहिए. डिजॉल्व होकर वहाँ पे केमिकल एनर्जी बनेगा, उसके बाद वो कैरी होगा. सिमिलर इज द टेस्ट बर्ड, एनी टेस्ट, सो दैट इज टेकन फ्रॉम द टेस्ट बर्ड. टेस्ट बर्ड जो है एक रिसेप्टर है, टेस्ट रिसेप्टर्स है वो. ओके, दे आर बट एक्टिंग एज रिसेप्टर्स. सो वंस वट एवर द फूड दैट यू हैव टेकन, सो दैट विल बी डिजॉल्व विद द mucosa of the tongue and the taste receptors are stimulated, and that particular energy is now carried. Okay, so now this is how this is acting. Now again, sometime when we touch something, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम टच करते हैं, or mechanical deformations in the tissues activates a certain receptors and they convert it into action potential, and if the stimulus is threshold or supra-threshold, the action potential starts moving in the sensory nerves. So same चीज़ है. So what happens? That means कि जो भी आप टच करते हो और कुछ प्रेशर हो गया, टच हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, so then local tissues where this is taking place, so that will get activates. They activate certain receptors, and then this particular stimulus is converted into action potential, and if the stimulus is threshold, एक threshold होता है stimulus, ठीक है, वो threshold level से ऊपर है तो ये stimulus का that means there is formation of the energy. ठीक है, कभी कभी बहुत हल्का टच करते हो, वो threshold level से कम है तो ये जो है action potential होगा नहीं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि वो जो threshold level में होना चाहिए, threshold level में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये होगा. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम वेरी वेरी फाइन टच यू आर डूइंग, ठीक है, सो दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल, देन दिस स्टिमुलस विल नॉट बी देयर. इट शुड बी अबव द थ्रेशोल्ड लेवल. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन कमिंग विल बी टेकन इनटू द CNS, एंड दिस ट्रैक्स आर कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रैक्स. जो भी ये जो लेके जाता है इसको हम बोलते हैं कि असेंडिंग ट्रैक्स. द डिसीजन विल बी मेड इन द CNS. फर्स्ट इज गिवन टू द सेंसरी कॉर्टेक्स, फ्रॉम द सेंसरी कॉर्टेक्स इट इज गिवन टू द मोटर कॉर्टेक्स, and then the motor response will come. Okay, now we come to the actual part in ascending tracts. ये तो basic है इसलिए मैंने इसको समझा दिया आपको. Now if you see in the spinal cord, these tracts will be the part of white matter as we know. Now suppose skin के अलग अलग जगह में सब जो है sensory receptors है, तो वहाँ से sensations आ रहे हैं. So these sensations are carried through the smaller sensory nerves. छोटा छोटा सेंसरी नर्व्स है, तो वो सब इसको कैरी करके ले आ रहे हैं. देन लेटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द बिग सेंसरी नर्व, एंड दिस बिग सेंसरी नर्व फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नाउ दे विल एंटर इनटू स्पाइनल कॉर्ड एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, जो शोल्डर वाला एरिया है वो C2 C3 एरिया में आ जाता है. ठीक है, जो चेस्ट एरिया से जो सेंसेशंस आ रहे हैं वो जो है T1 T2 T3 वाले एरिया में आ रहे हैं. जो लंबार एरिया से वो लंबार वर्टेब्रा का लेवल में आ रहा है. ठीक है, सो लाइक दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेंसरी नर्व्स. Okay, and as a result there is a formation of quite bigger sensory nerve, and these sensory nerves now at one particular point at their level, so they enter into the spinal cord. Now they enter into the spinal cord. Okay, spinal cord tak aa gaye. The spinal cord, these tracts will be the part of the white matter as we know. Now spinal cord mein jo hai, these tracts will now runs upwards.
Once they enter into the spinal cord, then they runs upward. Now, very important is all the motor information which is coming from the center to the periphery, that comes to the motor nerves. Usually motor nerves will be present in the anterior aspect of the spinal nerve. एंटीरियर हॉर्न सेल बोलते हैं हम, ठीक है. एंटीरियर स्पाइनल नर्व में जो है, स्पाइनल कॉर्ड में जो है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे आगे का पोर्शन में हमेशा मोटर नर्व्स आते हैं. ऐसा नहीं है, सेंसरी भी आता है, वो एक्सेप्शन से मैं बात बताता हूँ. बट मैक्सिमम जो सेंसरी नर्व है, दे विल गो फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है दैट आई विल एक्सप्लेन. मैक्सिमम ऑफ द सेंसरी नर्व्स दे गो थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर लोब बोलते हैं उसको. ठीक है, and maximum the motor nerves coming from the center to the periphery, they are coming in the anterior part of the spinal cord. So spinal cord में क्या है कि in the center we know that gray matter is present outside and white matter is present inside. Gray matter is present outside and white matter is present inside. Hello. हाँ, सवा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके. अब देखेंगे जो भी है, देखेंगे. ओके, तो but gray matter in the central nerve system we know that the white matter is situated inside and gray matter is present outside. But when you come to the spinal cord, the white matters are present outside and gray matter is present inside. ठीक है, मैंने बताया था कि बहुत सारे ट्रैक्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता जाता रहता है. तो क्या है, ये ट्रैक सब व्हाइट मैटर है, तो इसलिए बाहर का जो पोर्शन है वो व्हाइट हो गया. ठीक है, व्हाइट मैटर हो गया और ग्रे मैटर अंदर दब गया. ठीक है, तो न्यूक्लियस में भी एक, स्पाइनल कॉर्ड भी एक न्यूक्लियस जैसा ही है, जैसे ऊपर न्यूक्लियस है वैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है. ग्रे मैटर का कलेक्शन है वो. ठीक है, चूहे का जो बॉडी पोर्शन है, ग्रे मैटर का कलेक्शन है. ओके, नाउ motor fibers come out of the spinal cord through the motor root of the spinal cord and sensory information taken into the spinal cord through the dorsal root, that is posterior. ये मैंने बताया आपको अभी. Sensory information go through the posterior part and all the motor information from the center to the periphery, it is coming through the anterior part. But in between there is a dorsal root. Dorsal root means पीछे का, posterior root, dorsal root. And ventral means anterior. So ventral or dorsal or anterior or posterior. Now what they say is this dorsal root or the posterior root, it also contains one ganglion. ठीक है, so that I will explain. That ganglion is called dorsal nerve root ganglion. Dorsal nerve root ganglion. Okay, so now itna, I think this much is clear now. Okay, now we will go further. Now so suppose you take one part of the skin. From the skin there is sensory nerves are going. Okay, that sensory nerves are going to the spinal cord at different levels. Okay, before your nerve entering into the spinal cord, in between there is a area in this particular spinal nerve that is called as dorsal nerve root ganglion. वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होने से पहले ही वहां पे एक गैंग्लियन है. ठीक है, तो जहां से सेंसेशन शुरू हुआ वहां से वो गैंग्लियन तक एक नर्व जाएगा. ठीक है, उसके बाद गैंग्लियन में वो सेटल हो जाएगा और उस वहां से दूसरा एक नर्व निकलेगा जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. बीच में एक बस स्टॉप जैसा आ जाएगा, वहां पे एक स्टॉप है. ठीक है, तो वो ये सेंसरी नर्व्स जाके एक स्टॉप लेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे. ओके, दिस कंटेन द कनेक्शंस, one with the periphery and another with the central process. Got the point? So जो dorsal nerve root ganglion है उसका जो डिस्टल मोस्ट पार्ट है वो आपका पेरिफेरी से वहां तक लेके जाएगा सेंसेशन को. डॉर्सल नर्व रूट का जो नर्व है, जो डॉर्सल नर्व रूट से स्पाइनल कॉर्ड होके ऊपर तक जा रहा है, सो दैट इज टेकिंग द सेंसेशन टू सेंटर. ओके, सो बोथ दिस रूट्स, ठीक है, दे जॉइन मिक्स टुगेदर एंड इट इज कॉल्ड एज trunk. Okay, later both these roots they will join together and that is called as trunk, and trunk divides into ventral and dorsal ramus. We will not go in that much of detail, don't get confused. Okay, ramus contain both sensory and dorsal nerve, and I think in the spinal cord you may be knowing this, and ventral ramus forms the various flexes like brachial flexus, etc. So don't confuse here.
just leave it. Okay, now this is very important. White matter of the spinal cord contains dorsal columns or funiculus. Anterior columns or funiculus contains both ascending and descending and lateral columns. They contains both ascending, descending, and connected with the sympathetic nerve system. Again, I will skip this, otherwise you will get confused. We will discuss it later. Yes, now this is very important. द असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है, बीच में असेंडिंग ट्रैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बीच में एक डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन भी आता है, ठीक है. नाउ द असेंडिंग ट्रैक्स विच आर प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट आर हेवीली माइलिनेटेड, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर असेंडिंग ट्रैक्स, दिस ट्रैक्स आर देयर फॉर डिफरेंट सेंसेशन. टच सेंसेशन के लिए अलग ट्रैक्ट है, ठीक है, प्रेशर सेंसेशन के लिए अलग ट्रैक्ट है, वाइब्रेशन के लिए अलग ट्रैक्ट है, हीट के लिए अलग ट्रैक्ट है, ओके, प्रेशर के लिए अलग ट्रैक्ट है, पेन के लिए अलग ट्रैक्ट है, अलग अलग सेंसेशन के लिए अलग अलग ट्रैक्ट है. ये सब ऊपर जा रहा है, ठीक है. ऊपर जाते वक्त बीच में एक डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया मिलता है और वहां से वापस आगे बढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर जाते हैं, ठीक है. सो बट द थिंग इज दीज सेंसरी ट्रैक्ट्स विच इज गोइंग फ्रॉम द पेरिफेरी, दे आर हेवीली माइलिनेटेड. बहुत ज़्यादा माइलिनेशन होता है. जितना ज़्यादा वो उसमें माइलिनेशन है उतना ही ज़्यादा उसमें इम्पल्स कैरी होता है. इसलिए कोई टच करते ही हमें पता चलता है तुरंत, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बिकॉज दिस ट्रैक्स आर हेवीली माइलिनेटेड. ओके, तो ये जो ट्रैक्स है, जो डॉर्सल नर्व ट्रैक्स है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर पोर्शन से ऊपर जाने वाला ये जो ट्रैक्स है, दे आर हेवीली माइलिनेटेड. एंड दिस इज जस्ट लाइक एक्सप्रेस वे. जैसा हमारा एक्सप्रेस वे बनता है ना, तो ये एक्सप्रेस वे जब बनता है तो क्या है कि कोई स्टॉप नहीं है, हेवीली सीधा जाता है, ठीक है. नाउ दिस इज वन थिंग. एंड दीज ट्रैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट मॉडर्न ट्रैक सिस्टम. बहुत मॉडर्न ट्रैक सिस्टम है ना, बहुत फास्टली जो है सेंसेशन इसमें जाता है, ठीक है. दे आर वेरी एक्यूरेट इन सेंसिंग. सेंसेशन को सेंस करने में भी ऐसे ये बहुत एक्यूरेट है. आप खुद को सोच डाल के देखो इसमें, है ना, कोई टच कर रहे तो कितना जल्दी आपको पता चलता है, ठीक है. तो उतना जल्दी चला गया वो इंफॉर्मेशन. सो दे आर वेरी एक्यूरेट इन सेंसेशन कैरिंग, एंड ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मॉडर्न ट्रैक सिस्टम. बहुत फास्ट चलता है, ठीक है. एंड नाउ दीज आर द नर्व्स, सेंसरी नर्व्स विच आर गोइंग टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ not only in the posterior part of the spinal cord, some of the tracts they will also go in the anterior columns of the spinal cord. अब तक मैंने क्या बोल रहा था आपको, एंटीरियर से हमेशा मोटर आता था, पोस्टीरियर से हमेशा सेंसरी जाता है. हाँ, एंटीरियर से हमेशा मोटर आता है, देयर इज नो डाउट, बट एंटीरियर से कुछ सेंसरी भी ऊपर जाता है, ओके, ठीक है. एंटीरियर से स्पाइनल कॉर्ड में जो पोस्टीरियर में जो ऊपर जाता है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है और वो बहुत फास्ट गोइंग है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं मॉडर्न ट्रैक सिस्टम है, ठीक है, वेरी एक्यूरेट है. जो सेंसरी ट्रैक्स एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट से ऊपर चलता है और स्पाइनल कॉर्ड का जो लैटरल पार्ट से ऊपर चलता है, सो सम ऑफ द ट्रैक्स आर देयर व्हिच आर गोइंग थ्रू, सेंसरी ट्रैक्स आर देयर व्हिच आर गोइंग थ्रू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सम ऑफ द ट्रैक्स आर देयर व्हिच आर गोइंग थ्रू द लैटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. पोस्टीरियर से जो जाता है तो हो गया वो, ठीक है, वो तो एक्सप्रेस वे है, और कुछ सेंसेशन यहां से भी जाता है. बट दीज ट्रैक्स आर नॉट मच हेवीली माइलिनेटेड. ये बहुत ज़्यादा माइलिनेटेड नहीं है, ठीक है, कंपेयर टू दी डॉर्सल नर्व रूट्स. ये थोड़ा लेस माइलिनेटेड है. देयरफॉर दे आर नॉट सो एक्यूरेट इन सेंसिंग द सेंसेशन, ओके. सो व्हाइल सेंसरी ट्रैक्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर कॉलम एंड द लैटरल कॉलम are also called as anterior lateral tracts, ठीक है. जो सेंसरी ट्रैक्स है स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन से या लैटरल पोर्शन से जाता है, उसका दूसरा नाम दे दिया गया है एंटीरियो लैटरल ट्रैक्ट्स, एंटीरियो लैटरल ट्रैक्ट्स. और इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सिस्टम. वो क्या था जो पीछे से जाता है डॉर्सल में, वो मॉडर्न ट्रैक सिस्टम. और ये क्या है, ये पुराना सिस्टम है, प्रिमिटिव सिस्टम, प्रिमिटिव ट्रैक्स, ओके. एंड दे आर नॉट हेवीली माइलिनेटेड. मतलब वो एक एक्सप्रेस वे के जैसा है और ये जो है एक सर्विस रोड जैसा है, ठीक है. दोनों कैरी कर रहे हैं सेंसेशन को,
वो एक्सप्रेस वे है, वो पोस्टर रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये जो है एंट्रोलैटरल रहता है, और ये एक डर्ट रोड का जैसा, सर्विस रोड जैसा है, ठीक है। नाउ अगेन so what happens, all the modern sensations are carried through the dorsal nerve system, and all the primitive sensations are carried through the anterolateral system. Now the things are very clear. जितना भी जो है मॉडर्न सेंसेशंस है, अब क्या है मॉडर्न सेंसेशन है, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और पेन, और उसके बाद आपका हीट, कोल्ड, ठीक है, तो ये सब जो है मॉडर्न सेंसेशन में आता है। सो दे आर ऑल कैरिड थ्रू द पोस्टर ट्रैक्ट्स, दे आर कॉल्ड द पोस्टर ट्रैक्ट्स, वेयरएज एंटीरियोलैटरल में जो सेंसेशन जाता है, सो दे आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस लाइक इवन पेन, हीट, ठीक है। सो पेन हीट वहां पे भी जाता है, एक्चुअली इसमें भी जाता है, जो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, पेन और हीट को वहां से हटा दो आप, बाकी सब वहां से जाता है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर आता है, वो सब उसमें जाता है। प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स, यू नो, जॉइंट सेंस, पोजिशन सेंस, दैट ऑल कैरिड थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। वो सब मॉडर्न सिस्टम में आता है, मॉडर्न सेंसेशन में आता है, ठीक है। पेन है, हीट है, कोल्ड ट्रिकलिंग है, इचिंग है, और कुछ सेक्सुअल सेंसेशंस है। सो दीस आर कंसिडर्ड द प्रिमिटिव, मतलब ये पहले से है, पहले से है, मतलब आप छोटा सा छोटा एनिमल को देखेंगे, प्रिमिटिव एनिमल को देखेंगे, तो वहां पे भी ये सब सेंसेशन है, ठीक है। तो पहले से ही बहुत पुराना सेंसेशन है। इचिंग, खुजली, तो मनुष्य का बहुत पुराना एक सेंसेशन है, ठीक है। सेक्सुअल सेंसेशन, सेक्सुअल जो सेंसेशन है वो आप देखो अमीबा में भी है, वो बैक्टीरिया में भी है, और छोटा एनिमल्स में भी है, और बड़े एनिमल्स में भी है। So a primitive sensations, so sexual sensations, itching, cold trickling, then pain, heat, etc. So these are carried through the, what you say, anterolateral system. Okay, now this much is clear. Now come to the next part. The butt. Dorsal root carries some sensations which are needed to reach the CNS with a great velocity. बार बार हम इसको बोल रहे हैं, जो CNS को बहुत जल्दी रीच होने का जरूरत है, वैसी सेंसेशन पोस्टीरियर रूट से जाता है, ठीक है। इट मे बी टच सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन, वाइब्रेशन, फाइन टच, कोल्ड टच, एक्सेट्रा, ठीक है। सो देयरफॉर इट हैज गॉट हाई वेलोसिटी एंड नीड एक्सट्रीमली एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस लाइक फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। सो जैसा भी डॉर्सल नर्व रूट का बात, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स का बात आ गया, तो प्रोप्रियोसेप्शन एक उसी में कैरी होता है, उसके साथ फाइन टच, ये सब आ गए, ओके। प्रोप्रियोसेप्शंस आर द सेंस, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या है। प्रोप्रियोसेप्शंस आर द सेंसेशन कमिंग फ्रॉम द लोकोमोटर सिस्टम, लाइक सेंस ऑफ फाइन टच, पोजिशन सेंस, वाइब्रेशन सेंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम, एक्सेट्रा। कल भी हम इसका बात कर रहे थे। तो ये सब जो है ये प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आप आंख बंद कर रहे हो और एक बार यहाँ पे आप प्रिक कर रहे हो, एक बार यहाँ पे प्रिक कर रहे हो, ठीक है। अदर ऑल्दो योर आईज आर क्लोज, यू कैन अप्रिशिएट एक्चुअली वेयर यू आर प्रिकिंग, इजंट इट, ठीक है। 2 बार आप प्रिक कर रहे हो नीडल से, बट आंख बंद होने के बाद भी जो है आप उसको एसेस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। कुछ पेशेंट में जहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन चला जाता है, दे आर नॉट एबल टू से, अगर उसको आप प्रिक कर रहे हो, पूछ रहे हो कहाँ प्रिक कर रहा हूँ, आप प्रिक कर रहे हो हाथ में, तो वो बोलेगा कि नहीं आप प्रिक ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इस टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो दैट मीन्स 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उसका चला गया, प्रोप्रियोसेप्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इवन द इक्विलिब्रियम ऑल्सो, दिस इज कम्स अंडर द प्रोप्रियोसेप्शन, ओके। एंड दीज सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस है जो कैरी कर रहे हैं इसमें, सम ऑफ देम आर रीचिंग द सेरेब्रम एंड सम ऑफ देम आर रीचिंग द सेरेबेलम। जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्शंस है, जैसा बैलेंस का है, इक्विलिब्रियम का है, सो दे एक्चुअली रीच एंड टर्मिनेट एट द सेरेबेलम, बिकॉज सेरेबेलम प्लेस an important role in the balance, tone, posture, etc. And some of them are also reaching the cerebrum, okay. Now डॉर्सल नर्व ट्रैक्ट्स, कौन कौन सा डॉर्सल नर्व ट्रैक्ट्स है?
So pain, heat, cold, crude touch is carried through the anterior lateral tracts. अभी हमें पता है कि सेंसरी मतलब कितना है, सेंसरी मतलब कितना है। एक मिनट, हेलो, हाँ सर बोलिए। बढ़िया बढ़िया। क्या सर? हाँ हाँ, ठीक है सर, डाल देंगे डाल देंगे। अभी तो हमारा बच्चे कितना दिन से जा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, डाल देते हैं सर, डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, ओके ओके। डॉर्सल नर्व ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो दिस एंट्रोलैटरल ट्रैक्ट्स है और एक डॉर्सल ट्रैक्ट्स है। एंट्रोलैटरल में जाता है पेन, हीट, कोल्ड, क्रूड टच, सेक्सुअल सेंसेशंस, इचिंग सेंसेशन एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ये जो एंट्रोलैटरल ट्रैक्ट से जो सेंसेशन जाता है यूजुअली, इसको लोकलाइज करना बहुत मुश्किल है। पेन है ना, सपोज आपको पेन हो रहा है, तो पेन एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है बोलना बहुत मुश्किल है ना। एक एरिया को दिखा सकते हैं, उस एरिया में भी कहाँ से आ रहा है बोलना बहुत मुश्किल है। सो ये जितना भी पेन है, हीट है, कोल्ड, आपको ठंड लग रहा है समर सीजन में, आप सॉरी विंटर सीजन में ठंड लग रहा है, ठंड लगते वक्त एक्चुअली ठंड स्किन का कहाँ से लग रहा है आपको बोलना बहुत मुश्किल है ना। पूरा ऑल ओवर द बॉडी में हो रहा है, या तो दैट मीन्स लोकलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। पिन पॉइंट ऑफ द पेन, पेन कहाँ से हो रहा है, एक पर्टिकुलर नीडल पॉइंट में बोलना आपको बहुत मुश्किल है। All such sensations which are very difficult to localize, and that sensations are carried through the anterolateral tracts of the sensory system. Okay, so जो not accurately maintained, जिसको accurately बोलना मुश्किल है, इस टाइप का सभी सेंसेशन है वो ascending tracts में किस में जाएगा, anterolateral tracts में जाएगा। जो accurately आप बोल सकते हो वो सब किस में जाएगा, वो सब dorsal root में जाएगा और पोस्टर रूट में जाएगा। Now these are certain receptors like, there are certain receptors like Missen's receptors, Pacinian receptors, Golgi tendon organs, etc. तो ठीक है, ये सब रिसेप्टर्स है, एक प्रेशर के लिए, वाइब्रेशन के लिए, ये सब है। सो ये जो रिसेप्टर्स है ये सब डॉर्सल नर्व रूट में जाएगा। ओके, डॉर्सल नर्व रूट में क्या क्या जाएगा, यही है मैंने जो पहले जो बताया था, वाइब्रेशन है, प्रेशर है, फाइन टच है, क्रूड टच है, और उसके बाद जितना भी प्रोपियोसेप्टर रिसेप्टर्स है वो सब जो है डॉर्सल नर्व रूट में जाएगा। ओके, सो जहां से ये रिसेप्टर है वहां से लेकर के डॉर्सल नर्व रूट तक, ठीक है, जहां से रिसेप्टर है वहां से जो सेंसेशन शुरू हो गया वहां से लेकर के अब आ गया डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया तक आ गया, है ना। डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया से वहां से वापस चला गया स्पाइनल कॉर्ड तक। सो वहां से लेकर के डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया तक, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो पेरिफेरल पार्ट्स है वो कनेक्ट कर रहा है रिसेप्टर से, ठीक है, और उसको दूसरा पार्ट है दैट इज कनेक्टिंग टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इट्स पेरिफेरल पार्ट कनेक्ट्स विद द रिसेप्टर्स while the central part connects with the central nervous system through the spinal cord, उसको central nervous system में connect कर रहा है। This is further divided into medial root and lateral root. बाद में आगे जाते हैं ये वापस डिवाइड होता है into medial root and lateral root. The medial roots are then carried through the dorsal column, and then in the dorsal column more and more fibers are joined laterally and then start ascending upwards. Now there is formation of two bundles in the dorsal root. Okay, so ये जो sensation जो जा रहा है ना, जाने के बाद डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया में चला गया, तो वहां से मैंने बता दिया वहां से दूसरा ब्रांच जो है, आगे का जो ब्रांच है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसको सेंटर को लेके जा रहा है। डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया तक हम जो बोलेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये इसका जो दूसरा पार्ट है जो गैंग्लिया से जो सेंटर को लेके जा रहा है, सो व्हेन इट गोज फॉरवर्ड्स
Again, it divided into two parts. One is medial part and another one is lateral part. Okay, or medial roots and lateral roots. Okay, so now ये क्या है मीडियल रूट और लैटरल रूट्स? ये कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया जो सेंसेशंस विच आर कैरिड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल आपका लोअर लिम्स है, वहां पे भी सेंसेशन है ना, तो वहां से जो सेंसेशंस वगैरह जो भी आ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन, सेंसेशन, क्रूड टच, फाइन टच, जो भी है, जितना भी सेंसेशन है, जो लोअर लिम्स से आ रहा है, कहां तक? T6 वर्टेब्रा का लेवल तक. ठीक है, T6 वर्टेब्रा का लेवल तक आ रहा है, तो वो सभी जो है इकट्ठा हो जाता है. वो इकट्ठा होकर के बन जाता है लैटरल बंडल. लैटरल बंडल, ठीक है, मतलब वो नीचे से आ रहा है ना, नीचे से लैटरल बंडल शुरू हो रहा है, मतलब आपको कॉक्सिस माने सैक्रल लेवल से शुरू हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से T6 लेवल तक आ रहा है. ये जो बंडल्स है ये एक्चुअली क्या कैरी कर रहा है? ये सेंसेशन, डॉर्सल रूट का सभी सेंसेशन और प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आ रहा है, और ये लैटरल बंडल को बना रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर चढ़ रहा है. तो ये सीधा ऊपर चढ़ रहा है, T6 तक लेवल तक का लेके आ रहा है, वहां तक तो लैटरल बंडल हो गया, और ऊपर चढ़ना है ना, तो भी जो है लैटरल बंडल ऊपर चढ़ता रहता है. T6 का ऊपर का लेवल का जितना भी सेंसेशन है उसको क्या करता है, बहुत सारे नर्व्स आते हैं वहां पे भी, है ना, T6 के ऊपर का लेवल का जो प्रोप्रियोसेप्शन और सेंसेशन को लेके जाने के लिए वो एक बंडल बनाता है. वो एक बंडल बनाता है, उस बंडल को हम बोलते हैं मीडियल बंडल. समझ में आ गया? जो नीचे वाला है, नीचे से लेके आ रहा है, लैटरल बंडल है, वो T6 तक लेके आता है, और T6 को होते होते वो ऊपर तक चलता है, क्योंकि ऊपर तक तो चढ़ना ही है उसको. सो लैटरल बंडल विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल बंडल. और T6 का ऊपर है, वो वहां से T6 में एंटर होता है, T6 में अंदर एंटर हो गया और ऊपर चढ़ गया. अब क्या डिफरेंस हुआ? T6 का नीचे सिर्फ लैटरल बंडल है, T6 के ऊपर लैटरल बंडल भी चढ़ रहा है और मीडियल बंडल भी चढ़ रहा है. ओके, so this is very important. So while the sensation from the upper part of the body, upper limbs and shoulder, chest, etc. are collected into the medial bundle, and now from there onwards, T6 onwards, both medial and lateral they runs upwards. T6 का नीचे तक मीडियल का जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ लैटरली तो कलेक्ट कर रहा है सब कुछ. सो T6 का नीचे तक सिर्फ लैटरल है, और T6 के ऊपर लैटरल और मीडियल दोनों है. ये सब छोटे छोटे चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ऑन द बोथ साइड्स. अब क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड से ये एंटर हो रहा है ना, तो वहां पे एक लैटरल बंडल हो गया, एक मिडिल बंडल हो गया. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से आता हुआ एक लैटरल बंडल हो गया, एक मिडिल बंडल हो गया. टोटली 4 ट्रैक्स हो गए. ठीक है, टोटल कितना हुआ? 4 ट्रैक्स हो गया. नाउ द मीडियल बंडल इज कॉल्ड एज fasciculus cuneatus. जो मीडियल बॉन्ड है, मीडियल जो फाइबर्स है जो T6 के ऊपर तक है, उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है fasciculus cuneatus. fasciculus cuneatus. जो लैटरल जो बंडल से नीचे से जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज fasciculus gracilis. इसका दूसरा नाम है ट्रैक्ट ऑफ cuneatus एंड ट्रैक्ट ऑफ gracilis. ये दोनों कहां चढ़ रहा है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल पार्ट्स में चल रहा है. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज इन द स्पाइनल कॉर्ड बिलो T6 लेवल, स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स ओनली लैटरल कॉलम. above C6 level, spinal cord contains lateral and as well as medial columns. Lateral and as well as medial columns. Now, this bundle, in these bundles, the sensory fibers are very trophographically arranged in the bundle. मतलब यहाँ पे ये जो बंडल्स है, मीडियल बंडल और लैटरल बंडल जो सेंसेशन को लेके ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे जो फाइबर्स है ना, वे बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है. सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है इसका मतलब, फॉर एग्जांपल, कोई अगर ट्यूमर है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है. सपोज एग्जांपल, कोई ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है या बिनाइन जो भी है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है. कहाँ पे? मीडियल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है. अब क्या होना चाहिए? एक स्पाइनल कॉर्ड है, मान लो एक T1 लेवल पे, T1 लेवल पे कोई ट्यूमर जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है.
तो सबसे पहले कौन सा सेंसेशन जाएगा? सबसे पहले कौन सा सेंसेशन जाएगा? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का सेंसेशन जाएगा, क्योंकि लैटरल मीडियल फाइबर्स सिर्फ अपर पार्ट से कलेक्ट करता है, ठीक है। वही लैटरल कंप्रेशन कॉजेस लोअर पार्ट सेंसेशन। कोई अगर ट्यूमर है जो स्पाइनल कॉर्ड को लैटरल पार्ट से कंप्रेस कर रहा है तो लोअर पार्ट का सेंसेशन चला जाएगा, ओके। दैट टू इन ए ऑर्डर। जब ये चला जाएगा ना सेंसेशन, एक ऑर्डर में जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट फुट मसल्स का जाएगा पहले, उसके बाद काफ मसल का सेंसेशन जाएगा, उसके बाद ताई मसल्स का। मतलब इसी को बोलते हैं ट्रोफोग्राफिकली इट इज अरेंज्ड। सिस्टमैटिकली फाइबर्स जो है ना एक बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड है वहाँ पे, वन बाय वन। सो जैसा वो प्रेस करता जाएगा वन बाय वन सेंसेशन चलता जाएगा। गॉट द पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now from the right side, sensations are carried in the right dorsal tracts, and from the left side, the sensations are carried in the left spinal left dorsal tract. पता है ना, these two tracts का जो नाम है भूला नहीं है, tract of gracilis and tract of cuneatus. And this is how they ascend upwards ipsilaterally. राइट साइड वाला राइट साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से जाएगा। T6 का नीचे जो है एक ही बंडल है, लैटरल बंडल है। T6 के ऊपर जो है मीडियल और लैटरल दोनों है। नाउ दिस फाइबर्स नाउ गो थ्रू दिस बंडल्स, ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ते चढ़ते द बंडल्स दे इवेंचुअली रीचेस द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये फाइबर्स जो है जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा तक। नाउ मेडुला कंटेन्स न्यूक्लियस फॉर टू ट्रैक्ट्स। अब मेडुला में इसके लिए एक बस स्टॉप है, एक स्टॉप है, तो वहाँ पे उसको रिसीव करने वाले हैं। तो ये जो ट्रैक्ट्स है जो ऊपर जा रहा है, ट्रैक्ट ऑफ क्यूनेटस और ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसिलिस, इसके लिए वहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ओके। सो फॉर द मीडियल ट्रैक्ट्स वहाँ पे न्यूक्लियस है, एंड देयर आर टू मीडियल न्यूक्लियस एंड ऑल्सो देयर इज टू लैटरल न्यूक्लियस, ओके। सो एक बार जो है दिस फाइबर्स जितना भी ऊपर से आप चले गए, नीचे से जो चले गए फाइबर्स, दे विल गो टू टर्मिनेट इन दिस न्यूक्लियस। एक बार वहाँ पे जाके रेस्ट लेते, टर्मिनेट हो गया वहाँ पे, ओके, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होने के बाद वहां से ठीक है, तो वहां से वापस ट्रैक्ट शुरू हो जाता है ऊपर, दूसरा ट्रैक्ट, मतलब यही ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू होता है। बट जब ये मेडुला में जाके अपने एक न्यूक्लियस में टर्मिनेट होता है तो वहां तक हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ से रिसेप्टर शुरू होता है वहाँ से लेकर के डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन तक है ना, जो न्यूरॉन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। वो डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड में होते ऊपर आ गया और मेडुला ऑब्लांगेटा में जाके एक न्यूक्लियस था, मीडियल एंड लैटरल न्यूक्लियस, वहाँ पे टर्मिनेट हो गया। वहाँ तक जो हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ओके। इट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। Now, these second order neurons, axons will now cross the opposite side and move upward. अब यहाँ पे कुछ एक पंगा हो जाता है। What is, क्या होता है कि जैसा यहाँ पे न्यूक्लियस में ये आके टर्मिनेट हो गया, अगर यहाँ से नया फाइबर अभी शुरू हो गया, इसका ऊपर लेके जाना है ना, सेंसेशन को तो कॉर्टेक्स तक लेके जाना है, तो यहाँ से जो है ऊपर जाना है। ऊपर जाने से पहले ये क्या करते हैं, डॉर्सल नर्व रूट, मतलब ट्रैक्ट ऑफ क्यूनेटस, ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसिलिस, ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा जाके टर्मिनेट हो गया, वहाँ से नया न्यूरॉन्स बन गया। न्यू न्यूरॉन्स नाउ ट्रैक्ट्स, न्यूरॉन्स और ट्रैक्ट्स, दे विल क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड, दे विल क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। उसको बोर हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में आके, यहाँ से ऑपोजिट साइड में क्रॉस हो गया। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में चला गया और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चला गया। सेम हैपेंस, मोटर फाइबर्स भी जब ऊपर से नीचे आता है मेडुला ऑब्लांगेटा में क्रॉस करता है ऑपोजिट साइड में, ये आपको पता होगा। वैसे ही होगा सेंसरी में भी, ठीक है, सेंसरी में भी जो है ऑपोजिट साइड में क्रॉस करता है, ओके। द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एक्सॉन विल क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड एंड मूव्स अपवर्ड्स। देयर इज डिकसेशन ऑफ द फाइबर्स, दिस इज डिकसेशन में क्रॉस ओवर हो गया। तो द फाइबर्स विच क्रॉस आर कॉल्ड एज इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स। अब उसका नाम बदल दिया, जो फाइबर एक बार क्रॉस हो गया ना, अब तो हम उसको ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसिलिस, ट्रैक्ट ऑफ क्यूनेटस नहीं बोलते, वो तो जब न्यूक्लियस में जाके टर्मिनेट हो गया तो वो खत्म हो गया वहाँ। अब नया ट्रैक्ट जो बना वहाँ से,
तो उसका नाम हमने रख दिया कि इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. नाउ left side contains the information from the right side of the body and right side fibers are containing the information from the left side of the body. ये क्रॉस हो गया ना यहाँ पे. Now they are called as internal arcuate fibers. Okay. Now these bundles which are going up now are called as right medial lemniscus and left medial lemniscus system. यहाँ से शुरू होता है lemniscus. ये जो फाइबर्स क्रॉस हो गए उसको हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. उसके बाद ये ऊपर चढ़ेंगे ना, आगे आप चढ़ेंगे, जो राइट साइड का जो ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं राइट मीडियल मेनिस्कस, और लेफ्ट साइड का जो ट्रैक्ट है इज कॉल्ड एज लेफ्ट मीडियल लेमिनिस्कस. ठीक है, लेफ्ट मीडियल लेमिनिस्कस. लेमिनिस्कस का मतलब है फ्लैट बंडल, फ्लैट है. ठीक है. सो नाउ दिस लेमिनिस्कस फाइबर्स, राइट एंड लेफ्ट मीडियल एंड लैटरल left medial lemniscus system fibers, so they now pass through the pons, and from the pons they reach as the midbrain. From the pons they reach as the midbrain. एक बार midbrain में चला गया, then they reach as the thalamus and get connected with the ventroposterior lateral nucleus of the thalamus. thalamus में एक न्यूक्लियस है. ठीक है, thalamus में, hypothalamus में एक न्यूक्लियस है, ventroposterior nucleus. ठीक है, तो वहां पे जाके ये टर्मिनेट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वहां से टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेट होने के बाद वहां से जो ऊपर ट्रैक्स चलता है, सो दे आर कॉल्ड एज यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्मिनेट हियर एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से शुरू हो जाता है. ओके, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम द ventroposterior nucleus of the hypothalamus. Now it reaches the cerebral cortex. So eventually it going to end in the sensory cortex of the cerebral cortex. तो ये कहाँ पे है? पोस्ट सेंट्रल गैरस में. ठीक है, सेरेब्रम में पोस्ट सेंट्रल गैरस है, वहां पे रहता है आपका सेंसरी कॉर्टेक्स. अल्टीमेटली ये जाके वहां पे एंड होता है. सो दिस इज स्टार्टेड एज सिंपल सेंसरी नर्व, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन आ गया, गैंग्लियन से आगे बढ़े, मीडियल और लैटरल बंडल्स बने, ये जाके जो है मेडुला ऑब्लंगेटा में न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो गया, तो वहाँ पे ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बने, वहाँ से और ऊपर चढ़े और उसके बाद पॉन्ड्स को सब क्रॉस करते हुए ये हाइपोथैलेमस में आ गया. जब मेडुला ऑब्लंगेटा से हाइपोथैलेमस का इसका ट्रैक्ट का नाम हमने रख दिया लेफ्ट एंड राइट मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. ठीक है, तो वहाँ तक ये पहुँचा हाइपोथैलेमस, वहाँ पे वेंट्रोपोस्टर न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होके वहाँ से ऊपर चढ़े सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक. ठीक है, और जाके लास्ट में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पोस्ट सेंट्रल गैरस का मतलब है सेंसरी कॉर्टेक्स, वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया. सो दिस इज हाउ द असेंडेंट ट्रैक्स विल गो अप. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द डॉर्सल नर्व रूट, जो पीछे से जाने वाला है. जो आगे से जाने वाला है एंटीरियर लैटरल सेंसरी नर्व्स, उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, वो कैसे जाता है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच.